آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے جب آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا پرچار شروع کیا یعنی اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شروعاتی دنوں میں مسلمان بننے والے زیادہ تر لوگ وہی تھے کہ جو کمزور تھے، غریب تھے یا پھر غلام تھے۔ اس سے الٹ ایسے بہت کم ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سنا خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ریولیشن RH نیٹورک چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو بنتے رہیے گا۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور بہت بہترین ویڈیو ہے۔ حال ہی میں ابھی کچھ دنوں سے بہت سوشل میڈیا میں یہ خبر ہیں وقف بورڈ۔ آخر یہ وقف کا مطلب ہے کیا، اور یہ وقف کا کانسیپٹ کب سے شروع ہوا ہے، کس زمانے سے شروع ہوا ہے، یہ وقف کا کیا مطلب ہے، پوری تفصیل، پوری حقیقت، پوری سچائی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو کو آپ لوگ بالکل مس مت کریے گا اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں گے تاکہ لوگوں کو وقف کا مطلب سمجھ میں آئے کہ یہ وقف کا مطلب ہے کیا، اور یہ وقف کس زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ یہ پوری سچائی جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو چلیے بنا دیری ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے جب آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا پرچار شروع کیا یعنی اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شروعاتی دنوں میں مسلمان بننے والے زیادہ تر لوگ وہی تھے کہ جو کمزور تھے، غریب تھے یا پھر غلام تھے۔ اس سے الٹ ایسے بہت کم ہی لوگ تھے کہ جو مالی طور پر اچھے خاصے امیر ہوا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے ظاہر ہے ضرورتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب کیونکہ اسلام ریلیجن میں چیریٹی کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہے اور ایسا کرنے پر ثواب بھی حد سے زیادہ ملتا ہے، تو اسی لیے جو چند صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس ٹھیک ٹھاک مال تھا، انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے باقی کمزور مسلمانوں کی مدد کرنی شروع کر دی۔ اسپیشلی جو امیر صحابہ یعنی امیر مسلمان ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنی پراپرٹی یا پھر جو دوسرے بھی اسی طرح کے قیمتی ایسٹس تھے ان کو اسلام کے لیے دینا شروع کر دیا، اور ان دی گئی پراپرٹیز کا مینلی استعمال کیا جاتا تھا 3 کاموں کے لیے۔ پہلا کام تو ریلیجیس کام یعنی مذہبی کام جیسا کہ مسجد وغیرہ بنانا، دوسرا کام ایجوکیشنل پرپس مطلب کہ مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، مدرسہ وغیرہ بنانا، جبکہ تیسرا کام تھا چیریٹی یعنی کہ عام ضرورت مند لوگوں کی کسی بھی طریقے سے مدد ہونا، اور اس پورے پروسیس کو ہی کہا جاتا تھا وقف کر دینا، یعنی فلاں انسان نے اپنی زمین، اپنی پراپرٹی اسلام کے لیے یا دوسرے شبدوں میں اگر کہوں تو گاڈ یعنی کہ خدا کے لیے وقف کر دی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد پھر خلافت راشدہ کے دور میں، اس کے بعد پھر سلطنت بنو امیہ یا پھر سلطنت بنو عباس کے دور میں بھی جیسے جیسے دنیا کے باقی علاقوں میں اسلام پھیلتا گیا ویسے ویسے وقف کا یہ کانسیپٹ بھی دنیا کے ان سارے علاقوں میں فالو ہونے لگا۔ اسپیشلی آخری بڑی سلطنت یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں وقف کی پاپولیرٹی یا کہیں وقف پر عمل ہونا بالکل پیک پر پہنچ چکا تھا۔ لگ بھگ پوری مسلم دنیا پر پھیلے اس سلطنت کے لگ بھگ ہر شہر کے اندر ہی وقف کی بے شمار پراپرٹیز موجود ہوا کرتی تھیں۔ عثمانیوں نے ہی وقف کے اس سسٹم کو بہت زیادہ آرگنائز بھی کر دیا تھا، مطلب اس دور میں ایسے بہت سارے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے کہ جن کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ اس پراپرٹی کو اچھی طریقے سے مینج کریں۔ انہی پراپرٹیز کی آمدنی کے ذریعے سے ہی مسجدوں کو یا پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو یا اس کے علاوہ باقی جو چیریٹیبل ورک ہوا کرتے تھے ان کو فنڈ کیا جاتا تھا۔ دنیا کے باقی علاقوں کی طرح جب ہندوستان میں بھی اسلام آیا اور خاص طور سے جب یہاں پر 13ویں صدی کے بالکل شروعات میں ہی مسلم سلطنتیں قائم ہونا شروع ہوئیں، تب وقف کا یہ سسٹم انڈیا میں بھی آیا۔ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنتوں کے بالکل شروعاتی دور سے ہی مسلم رولرز یا پھر بہت سارے امیر مسلمان بھی اپنی پراپرٹیز وقف کرنے لگے تھے۔ اسی لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ اب وقف کا یہ سسٹم انڈیا میں بھی خوب پھلتا پھولتا چلا گیا، اور اسپیشلی مغل امپائر کے دور میں اپنے پیک پر پہنچ چکا تھا۔ پھر انگریزوں کے دور میں بھی یہ بڑھتا ہی گیا، اور ظاہر ہے جب اس کا ایریا اور اس کی پراپرٹی بڑھتی ہی جا رہی تھی تو اس کو مینج کرنے کے لیے اس میں بہت سارے وقت کے ساتھ ریفارمز وغیرہ بھی ہوتے رہے۔ مثال کے طور پر 1913 میں انگریزوں کے دور میں وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ لایا گیا، جس کا مقصد تھا کہ وقف کی پراپرٹیز کو ریگولیٹ کرنا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا۔ بھارت کو جب آزادی مل گئی تو اس نئے بھارت میں انڈین مسلمز کے لیے 1954 میں ایک بار پھر سے وقف ایکٹ کو انٹروڈیوس کیا گیا، جس کا مین موٹیو تھا کہ وقف کی جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کی حفاظت کی جا سکے اور اس کو صحیح طریقے سے مینج کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد یا کہہ سکتے ہیں کہ آخری بار سن 1995 میں ہی اس میں امینڈمنٹ کیا گیا تھا، اس میں بہت سارے بدلاؤ اور سدھار کیے گئے تھے، اور 1995 کے قاعدے قانون کے حساب سے ہی آج تک وقف بورڈ چلتا آ رہا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی ضرور آ رہا ہوگا کہ واقعی اگر وقف اتنا زیادہ پرانا ہے، مطلب صدیوں پرانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس تو بہت زیادہ ہی پراپرٹی ہوگی۔ تو ہاں دوستو، آپ لوگوں کے دماغ میں بالکل صحیح بات آ رہی ہے، کیونکہ وقف کے پاس واقعی بہت زیادہ پراپرٹی ہے، اتنی زیادہ کہ انڈین ریلوے اور آرمی کے بعد وقف بورڈ ہی پورے انڈیا کا تیسرا سب سے بڑا لینڈ اونر مانا جاتا ہے، یعنی ریلوے اور آرمی کے بعد پورے انڈیا میں سب سے زیادہ پراپرٹی وقف بورڈ کے ہی پاس ہے۔ مگر دوستو، پچھلے کچھ دنوں سے یہ وقف بورڈ پورے ہی انڈیا کے اندر کچھ زیادہ ہی چرچاؤں میں ہے، چاہے سوشل میڈیا دیکھ لیجئے یا پھر مین اسٹریم میڈیا کے چینل کھول کر دیکھ لیجئے، ہر طرف وقف بورڈ کی چرچا ہی نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ پچھلے ہی مہینے یعنی 8 اگست کے دن موجودہ بی جے پی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کے اندر
अंदर वक्फ से रिलेटेड एक बिल पेश किया था, जिसके जरिए से वो इस सदियों पुराने वक्फ सिस्टम में बहुत सारी चीजें बदलना चाहती थी। बीजेपी का कहना था कि ये सिस्टम करप्ट हो चुका है, वो तो सिर्फ वक्फ में सुधार करना चाहती है, मगर इसके उलट बाकी जो अपोजिशन मेजर पार्टीज थी, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर मशहूर मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी हो, वो मानो सारे के सारे इस बिल को देखकर गर्म पड़ गए। इवन नीतीश कुमार की वो पार्टी कि जिसके जरिए से ही बीजेपी की ये गवर्नमेंट चल रही है, वो भी इस बिल के खिलाफ दिखाई दी। नतीजा ये हुआ कि मेजोरिटी न रखने की वजह से ये बिल पास ना हो सका, लेकिन फिर भी बीजेपी ने हार नहीं मानी, बल्कि उसी दिन इस बिल को आगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया और अब वहां पर इस अमेंडमेंट बिल के ऊपर बड़ी तेजी के साथ प्रोसेस चल भी रहा है और शायद मुमकिन है कि ये बिल फ्यूचर में पास हो भी जाए, या ये भी मुमकिन है कि ये बिल फ्यूचर में भी पास न हो सके। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर बीजेपी इस वक्फ सिस्टम में ऐसा भी क्या बदलना चाहती है कि जिसको देखकर न सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीज ही बल्कि इनसे भी कहीं ज्यादा इंडिया के ज्यादातर मुसलमान अचानक से एक्टिव हो गए हैं। तो इस पूरे मैटर को गहराई से समझने के लिए हमको पहले वक्फ सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ बुनियादी बातों को समझना होगा। वैसे तो दोस्तों हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही जान चुके हैं कि ये वक्फ होता क्या है, लेकिन फिर भी आसान भाषा में आपको और क्लियर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाकर उससे प्रॉपर्टी बनाई, या ये मान सकते हैं कि आपके बाप दादा के जरिए से आपके हिस्से में प्रॉपर्टी आई। अब आपकी या तो औलाद नहीं थी इसलिए, या फिर औलाद थी भी मगर उसके बावजूद भी आपने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्रॉपर्टी को अब अपने पर्सनल यूज में रखने की बजाय इसको रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए दे दूं, मतलब कि वक्फ कर दूं, ताकि मरने के बाद भी ये मेरे लिए काम आती रहे। बस फिर आपने इसको वक्फ कर दिया और जैसे ही आपने इसको वक्फ किया तो इसकी ओनरशिप, मतलब इस जमीन का, इस प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक था, वो आपसे हटकर गॉड यानी कि अल्लाह के पास पहुंच गया। यहाँ पर भी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ओनरशिप परमानेंट है, मतलब ये प्रॉपर्टी अब हमेशा हमेशा के लिए खुदा की है। 10 साल, 20 साल, 100 साल, 500 साल, कभी भी कोई इंसान चाहे कि वो इसको बेच दे तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। और वक्फ की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अब उन्हीं तीनों कामों के लिए किया जाएगा कि जिनका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ लिखते हुए ये भी कहते हैं वक्फ बोर्ड हमेशा से जमीनों पर कब्जा करता आया है, इसीलिए इसके पास इतनी ज्यादा जमीन है और ये फ्यूचर में ही ऐसा करता रहेगा, इसीलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सीधे साधे गैर मुस्लिम सोशल मीडिया पर वायरल की जाने वाली इस तरह की फेक पोस्ट पर यकीन भी कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं पोस्ट के अंदर उनको ये भी बताया जा रहा होता है कि दरअसल ये तो एक ऐसी बॉडी है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जिस पर गवर्नमेंट की भी नहीं चलती है, न ही इंडिया के कोर्ट की इसके ऊपर चलती है, बल्कि ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता ही नहीं है, इसके अंदर तो शरिया लॉ का दखल है, जबकि ये सारी की सारी ही चीजें पूरी तरह से गलत हैं। दरअसल दोस्तों आज वक्फ बोर्ड के पास ये जो इतनी ज्यादा जमीन है, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसकी मेन वजह यही है कि क्योंकि जब कोई प्रॉपर्टी एक बार वक्फ कर दी जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए ही वक्फ हो जाती है, उसको आगे कभी भी बेचा नहीं जा सकता है, वक्फ से बाहर नहीं किया जा सकता है, बस उसको अच्छी तरह से मैनेज करके उसकी आमदनी के जरिए से चैरिटेबल या फिर रिलीजियस वर्क किया जा सकता है। अब रहा सवाल इस बात का कि गवर्नमेंट की इसके ऊपर नहीं चलती है, तो आपको जानकर शायद हैरानी हो कि आज हमारे देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं, यानी हर स्टेट का अपना एक अलग वक्फ बोर्ड होता है, उसमें भी फिर शिया सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। और इन स्टेट वक्फ बोर्ड का काम होता है कि स्टेट के अंदर मौजूद तमाम वक्फ की प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से मैनेज करना, उसके जरिए से अच्छी आमदनी बनाना और फिर उसी आमदनी को रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना। इन सारे स्टेट वक्फ बोर्ड से ऊपर नेशनल लेवल पर भी एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जो फिर ऊपर से इन तमाम वक्फ बोर्ड्स को हैंडल करता है। और मजे की बात यह है कि इन स्टेट वक्फ बोर्ड्स को जितने भी लोग चला रहे होते हैं उनको सरकार द्वारा ही चुना जाता है। इवन वो सर्वे कमिश्नर की जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी डिस्प्यूटेड लैंड पर जाकर ये फैसला करे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है या नहीं, उस सर्वे कमिश्नर को भी गवर्नमेंट के द्वारा ही चुना जाता है। नेशनल लेवल पर भी जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसको चलाने वाले लोग भी गवर्नमेंट के द्वारा ही बैठाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी बॉडी गवर्नमेंट के जरिए से ही चलती है, गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। और इसके अलावा अगर किसी लैंड पर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो कोर्ट के सामने जवाबदेही भी होती है, बाकायदा बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स की तरह सारे कायदे कानून को फॉलो करती है। आखिर में बात करें अगर चेंजेस की कि आखिर मौजूदा गवर्नमेंट 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए से क्या क्या बदलना चाहती है, तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि नए कानून के तहत ये चीज कंपलसरी यानी कि जरूरी बनाई जा रही है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है यानी सबसे ऊपर की बॉडी, उसमें जितने भी लोग बैठते हैं पूरे वक्फ को जो लोग मैनेज करते हैं उनमें 2 औरतों को मैंडेटरी किया जा रहा है, यानी 2 औरतों का होना जरूरी होगा। इस पर तो वैसे किसी भी ऑपोजिशन पार्टी ने या किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इतराज नहीं किया है, क्योंकि पुराने कानून के हिसाब से भी इस बात पर कोई रोक नहीं थी। अब वो बात अलग है कि कोई औरत बैठती हो या नहीं, और अगर अब मैंडेटरी हो गया है तो जाहिर सी बात है बैठ भी जाएंगी। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इससे अगली चीज में है। एक बदलाव ये भी किया जा रहा है कि इसी टीम में, मतलब जिसमें 2 औरतों को मैंडेटरी किया जा रहा है, 2 नॉन मुस्लिम्स को भी बैठाया जाएगा। अब अपोजिशन पार्टीज और बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का यही सवाल है कि आखिर जब वक्फ बोर्ड मुसलमानों से रिलेटेड है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी होती है, मुसलमानों से ही जुड़ी हुई चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, तो आखिर इसमें नॉन मुस्लिम्स का क्या काम होगा। और अगर बीजेपी की वाकई इस फैसले के जरिए से कोई नेक नियत है, जैसा कि वो दावा कर रही है कि हम ऐसे फैसलों के जरिए से 1 लॉ 1 नेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मतलब पूरे देश के लिए एक ही कानून हो, कहीं पर भी किसी के लिए कोई भी रोकथाम ना हो, तो फिर बीजेपी को चाहिए कि वो इंडिया के बहुत सारे ऐसे हिंदू बोर्ड्स पर भी एक्शन ले, उनमें बदलाव करे कि जिन बोर्ड्स के अंदर नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकते हैं। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि मंदिरों के इन बहुत सारे हिंदू बोर्ड्स में ये तक कानून है कि मुसलमान तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि सिख, जैन या फिर बौद्ध के जो बाय रूट या बहुत सारी दूसरी चीजों के जरिए से हिंदू ही माने जाते हैं और जिनको हिंदू धर्म के तौर पर कंसीडर किया जाता है, वो भी इन हिंदू बोर्ड्स के मेंबर नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी 1995 वाले एक्ट से
से सेक्शन 40 भी हटा रही है। और याद रहे कि ये वही सेक्शन है कि जिसके जरिए से वक्फ किसी भी इलाके में जाकर किसी जमीन के बारे में ये इंक्वायरी कर सकती है कि ये उसकी जगह है या फिर नहीं। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि इस नए अमेंडमेंट के जरिए से सरकार कलेक्टर को भर भर कर ताकत दे रही है। मतलब जमीन डिस्प्यूट से जुड़े हुए जो सारे काम सर्वे कमिश्नर किया करता था वो अब कलेक्टर किया करेगा। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी जमीन पर वक्फ बोर्ड और सरकार के ही बीच में डिस्प्यूट हो जाए, जैसा कि बहुत जगह है भी, तो क्या सरकार के अंडर ही में रहने वाला कलेक्टर ही इस बात का फैसला कर रहा होगा कि ये जमीन सरकार की है या फिर वक्फ बोर्ड की है? क्या सच में जरूरत पड़ने पर एक सरकारी ऑफिसर ही सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ले पाएगा? और इन तमाम चीजों से भी आगे बढ़कर एक बड़ा मैटर डिजिटल रजिस्ट्रेशन को लेकर भी फंस रहा है। मामला ये है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो नए कानून के तहत अब अगर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ हुआ करेगी तो उसका डिजिटल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हुआ करेगा। वैसे इसमें तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मैटर अंदर जाकर फंसता है। दरअसल इसमें एक चीज ये भी डाल दी गई है कि ये रजिस्ट्रेशन अगले 6 महीने के अंदर होना चाहिए। अगर 6 महीने गुजर गए और नहीं हो सका तो फिर ये वक्फ की प्रॉपर्टी मानी ही नहीं जाएगी और न ही फिर इस पर क्लेम करके केस लड़ा जा सकेगा। और इसी पॉइंट पर ही ऑपोजिशन लीडर्स ने और मेनली असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई है, क्योंकि उनका कहना है कि इसी पॉइंट का सबसे ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और वक्फ बोर्ड की जमीन को छीन लिया जाएगा। दलील यही दी जा रही है कि इंडिया में आज भी जिस तरीके का माहौल है, गांव तो छोड़ ही दीजिए बल्कि शहर जैसे इलाकों में भी 6 महीने के अंदर इस तरह का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी इस बात को जानते ही होंगे कि जब जमीन की ओनरशिप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो कितने लंबे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, और उसमें भी अगर बीच में कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए या कोई और मामला गड़बड़ हो जाए तो फिर तो बात ही ना कीजिए। तो कुल मिलाकर ये है वक्फ बोर्ड की पूरी कहानी और ये है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ वो पूरा मामला जो आजकल चर्चाओं में है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये मेहनत रंग लाई होगी और आप। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है। ये वक्फ का मतलब है हमारा ये 14.5 साल पुराना समझ लीजिए ये मामला है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनको नबूवत मिली, उन्होंने दीन का इस्लाम को फैलाना शुरू किया। तो जो भी पैसे वाले थे, जो भी साहिब हैसियत थे, किसी ने ज़मीन वक्फ कर दी, उस पर मदरसा बन गया, मस्जिद बन गई, कब्रिस्तान बन गया। जो पैसे वाले थे उन्होंने पैसे से ताउन किया। इस तरह से पूरे शहर में फैला, फिर पूरी दुनिया में फैला, फिर फैलते फैलते आज यहाँ तक मामला आगे फिर हिंदुस्तान में फैला। तो ये वक्फ का मतलब ये था। और इस टाइम वक्फ का मामला कुछ ज़्यादा ही सुप्रीम कोर्ट में भी है, तमाम चर्चाओं में भी है, तमाम न्यूज़ में भी है और तमाम वीडियोस की वायरल भी है। तो ये कॉन्सेप्ट था वक्फ का पूरा। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छी लगी इस वीडियो को तो शेयर जरूर करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।